بخشا ہے تاکہ ہم اپنے خداوند کے نام کو اونچا کر سکیں. ہم اپنے آپ کو پست کرتے ہیں, خداوند کو اونچا کرتے ہیں, خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے درمیان موجود ہے. ہمارے آنے سے پہلے وہ ہمارے درمیان موجود ہے. خداوند پاک روح کو ہم ویلکم کہتے ہیں اور خداوند سے منت کرتے ہیں کہ وہ جب تک ہم میٹنگ میں ٹھہریں ہم سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہ ہو. پریز لارڈ. میں ایک ورس پڑھوں گی. میں تیری طرف اپنی جان اٹھاتی ہوں اے خداوند, اے میرے خدا, میں تجھ پر توکل کرتی ہوں, مجھے شرمندہ نہ ہونے دے. پریز لارڈ. خداوند سے ہم یہی منت کرتے ہیں کہ جب ہم خداوند کی طرف اپنی آنکھیں لگائیں, خداوند سے اپنی جب ہم خداوند سے فریاد کریں, خداوند ہماری دعا سننے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہوں. پریز لارڈ. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اب میں سسٹر سمر سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آگے جو اوپننگ پریئر میں ہمیں لیڈ کریں. سمر بیٹا. جی ٹھیک ہے. باپ بیٹے کو کے نام سے مکر شکر کرتے ہیں, آپ نے موقع دیا ہے آپ میں حاضر ہونے کے باقلام پڑھنے گیا کہ پوزیشن کرنا. اس وقت ہم دل کی شدا کرتے ہیں, ہم سب کا ہاتھ ہے, مجھے باقلام سنے ہمارے لیے باعث برکت ہے. مجھے جتنی کوشش کریں آپ کو پسند ہے, جتنی دعا جائے کریں آپ کے ظبور کے پوزیشن کو جواب میں جیسے ملا. پیمنٹ میں کسی کرپشن ہے, مطلب ہمارا پورا فوکس پیمنٹ کے اوپر ہے. ہم سب کو تندرستی بخش دی جائے گا. آپ میرا شکر قبول کیجیے اس مسیح ناصری کے نام میں, آمین. آمین. پریز لارڈ. میں ایک ورس پڑھوں گی. اے خدا میری دعا پر کان لگا اور میری منت سے منہ نہ موڑ, میری طرف متوجہ ہو اور میری سن. پریز لارڈ. اب ہم جو عبادت کے نیکسٹ جو حصے میں داخل ہوتے ہیں اور ورشپ جو ہے, میں سسٹر ندا سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ فرسٹ ورشپ میں ہمیں لیڈ کریں. سسٹر ندا. Praise the Lord. او خداوند تیرا میں شکریہ کیسے کروں, او خداوند تیرا میں شکریہ کیسے کروں. تو نے بخشی ہے مجھے ایسی خوشی میں کیا کروں. تو نے بخشی ہے مجھے ایسی خوشی میں کیا کروں. تو نے مجھ کو دی جلا جب کچھ نہ باقی رہ گیا. تو نے مجھ کو دی جلا جب کچھ نہ باقی رہ گیا. گرتے پڑتے بے سہارا کو ہے باہوں میں لیا. گرتے پڑتے بے سہارا کو ہے باہوں میں لیا. او خداوند تیرا میں شکریہ کیسے کروں. دنیا بھر کی مشکلوں نے جب مجھے تھا لیا. دنیا بھر کی مشکلوں نے جب مجھے تھا لیا. ایک تیری ذات نے بڑا حوصلہ مجھ کو ملا. ایک تیری ذات میں بڑا حوصلہ مجھ کو ملا. او خداوند تیرا میں شکریہ کیسے کروں. زندگی کے اس سفر میں تجھے تکتا رہوں. زندگی کے اس سفر میں تجھے تکتا رہوں. اپنی ساری زندگی کا میں تجھے تحفہ کروں. اپنی ساری زندگی کا میں تجھے تحفہ کروں. او خداوند تیرا
मैं शुक्रिया कैसे करूं। दिन ब दिन तेरी मोहब्बत का मजा चखता रहूं। दिन ब दिन तेरी मोहब्बत का मजा चखता रहूं। तेरी मेहमा बंदगी हम दो सना करता रहूं। तेरी मेहमा बंदगी हम दो सना करता रहूं। ओ खुदावंद तेरा मैं शुक्रिया कैसे करूं। तूने बख्शी है मुझे ऐसी खुशी मैं क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। यकीनन हम जब खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदावन हम पे अपना आसमान खोलता है। प्रेज लॉर्ड। अब मैं सिस्टर माया से रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट वर्शिप में हमें लीड करें। सिस्टर माया। सिस्टर माया भी अब रेडी नहीं है तो मैं सिस्टर अरुसा से कहूंगी कि वो वर्शिप में हमें आगे लीड करें। Praise the Lord. तेरे करीब आके हमें जिंदगी मिले। तेरे करीब आके हमें जिंदगी मिले। ऐ यीशु तेरे प्यार का दिया सदा जले। तेरे करीब आके हमें जिंदगी मिले। है यीशु तेरे प्यार का दिया सदा जले। तेरे करीब आके हमें जिंदगी मिले। अंधे को बीनाई मिली, बीमार को शिफा। अंधे को बीनाई मिली, बीमार को शिफा। मसलूब करने वालों को भी माफ कर दिया। मसलूब करने वालों को भी माफ कर दिया। तुझको अजीज हर बशर है, तुझको अजीज हर बशर है। आसमां तले, आसमां तले तेरे करीब आके हमें जिंदगी मिले। तेरे करीब आके हमें जिंदगी मिले। तूने सिखाया रास्ता सबको निजात का। तूने दिखाया रास्ता सबको निजात का। तू है वसीला ए मसीहा अबदी हयात का। तू है वसीला ए मसीहा अबदी हयात का। तू पानियों पे ए नासरी, तू पानियों पे ए नासरी। संग हवा
के चले, तेरे करीब आके हमें जिंदगी मिले, तेरे करीब आके हमें जिंदगी मिले। ए यीशु तेरे प्यार का दिया सदा जले, तेरे करीब आके हमें जिंदगी मिले। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी वर्स पढ़ूंगी। खुदा हम पर रहम करे, हम बरकत बख्शे, वो अपना चेहरा हम पर जलवा गर फरमाए। प्रेज लॉर्ड। अब मैं सिस्टर माया से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वर्शिप में हमें लीड करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्त करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्त करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। भक्त बिना भक्ति अधूरी, क्रिस्त शरण तुझे आना है। छोड़ दे अपनी शक्ति बल, क्रिस्त में मोह लगाना है। भक्त बिना भक्ति अधूरी, क्रिस्त शरण तुझे आना है। छोड़ दे अपनी शक्ति बल, क्रिस्त से मोह लगाना है। जीवन अर्पण कर दो प्रभु में, प्रभु की आशीष पाना है। जय जयकार करो मिल सारे, धन्य मनाना है। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब मिल कर करो यीशु नाम रे। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। शांति मुक्ति का मार्ग वही है, उससे मोह लगाना है। सच्चा साथी प्रभु हमारा, उसे अपनाना है। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्त करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्त करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद के इस खूबसूरत महफिल के लिए जो खुदावंद हमारे दरमियान अपना तख्त लगाए हुए हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमारी हमदो सना पे सुनने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं। प्रेज लॉर्ड। मैं एक वर्स पढ़ूंगी। ए खुदावंद मेरी कुव्वत, मैं तुझे प्यार करती हूँ। ए खुदावंद मेरी चट्टान, मेरे मुखलिस, ए मेरे खुदा मेरी चट्टान जहाँ मैं पनाह लेती हूँ, मेरी सुपर और मेरी निजात का कर्ण है। प्रेज लॉर्ड। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद हम सबको अपने हाथ से छू रहा है, हमें बरकत बख्श रहा है, क्योंकि वो आज हम जो कलाम खुदावंद का सुने वो आज हमारी जिंदगी में 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना
हल लेके आए यीशु के नाम में, आमीन, प्रेज लॉर्ड। अब मैं सिस्टर शाहीन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे आएं और उन्हें वेलकम कहते हैं, ताकि वो आएं और रोटी पानी के लिए जो हम रोज खाते हैं खुदावन के लिए, जो खुदावन ने हमें ये बरकत बख्शी हुई है कि हम रोज रोटी तोड़ते हैं। मैं सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आएं और इसके लिए दुआ करें। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सनिया, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद इसी तरह अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे। आप हमेशा खुदावंद के नाम को ऊंचा करती रहें और इस ग्रुप के लिए, अपनी फैमिली के लिए बाइस बरकत बनती रहें। खुदावंद की सात रूहें आपकी जिंदगी में काम करें और आपको यीशु की मानक बनाएं। आमीन, हालेलुया। हम प्रस्तिश के लिए भी खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जो भी आपने हदिया नजराने चढ़ाए हैं, खुदावंद उनको कबूल करे और खुदावंद आपको बरकत दे और आप हमेशा अपने बदनों को अपने खुदावंद के लिए ही इस्तेमाल करें। ये जुबान, ये होंठ, ये गला सिर्फ खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो। और मैं चाहूंगी कि जो भी हमारे गीत गाते हैं, सिंगर हैं, आप खुदावंद से एक कह लें, खुदावंद की मोहब्बत में आप उसी के लिए गाया करें। आप जो गाने हैं वो ना गाएं, खुदावंद के लिए इस गले को इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसा कि हम हालात देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। जो भी टैलेंट, जो भी खुदावंद ने आपको तोड़ा दिया हुआ है, उससे खुदावंद के लिए इस्तेमाल करें ताकि उसमें हमारी तैयारी हो। तो मेरा ईमान है कि आप जरूर ये जो खुदावंद की आवाज है इसको सुनेंगे और इस पे अमल करेंगे। गॉड ब्लेस यू। और ज्यादा खुदावंद आपके ऊपर मसा जो है अपना उंडेलता रहें, ताकि आप खुदावंद के नाम को हमेशा अपनी आवाजों से जलाल देते रहें। गॉड ब्लेस यू। हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावंद तू जिंदा खुदा है। खुदावंद तू हमारी फिक्र करता है, तू हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है। खुदावंद तू हमारे ऊपर तरस खाता है कि खुदावंद तूने हमें, जब हम गुनाह में गिरे हुए थे, जब हम गंदे थे, नापाक थे, नाफरमान थे, खुदावंद तब तूने हमारी खातिर जान दी, ताकि हम शैतान की जो कैद में हैं, जिसने हमें दुख दिया, जो हमें जलील करता है, जो हमें शर्मिंदा करता है हर बात में, खुदावंद तूने हमें उसकी कैद से छुड़ा लिया। खुदावंद तूने उसे उसके जबड़ों में से हमें निकाल के ले आया। ये तेरे ही पास खुदावंद वो कुदरत है, वो ताकत है, यही तेरा प्यार, मोहब्बत और तरस है हमारे ऊपर कि खुदावंद तूने हमें उसकी कैद में रहने नहीं दिया, तूने हमें उसके जाल में पड़ा नहीं रहने दिया। खुदावंद तूने हमें अपने जोर से, अपनी ताकत से उसके शिकंजे में से निकाल लिया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद हम अपने आप को पेश करते हैं खुदावंद, अपने बदनों को, कि खुदावंद तू इन बदनों को ले, तू जिस तरह चाहता है तो इस्तेमाल कर, क्योंकि खुदावंद यीशु तूने कीमत दे के, तूने लहू बहा के, हमारी कीमत अदा करके खुदावंद तूने हमें उस जालिम से, उस हलाकत के फर्जंद से, हलाकत से, उस शैतान से खुदावंद खुदा, उस इब्लीस से हमें बचा लिया, हमें छुड़ा लिया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने अपनी मोहब्बत हमें दिखा दी है। खुदावंद अब हम अपनी मोहब्बत दिखाना चाहते हैं, हम अपने बदनों को पेश करते हैं। खुदावंद तू ले, खुदावंद तू इन बदनों का मालिक है। खुदावंद यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू हमें हर मुश्किल से, हर परेशानी से, हर बीमारी से रिहाई देने की, शिफा देने की, बहाल करने की ताकत और कुदरत रखता है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस तेरे प्यार के लिए, इस तेरे रहम के लिए, इस तेरे तरस के लिए, खुदा हम तेरे फजल के लिए हम दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं। खुदा जब हम इस रोटी को, इस पानी को लें, ये ऑयल जो खुदा
जब अपने ऊपर या अपने घर की चीजों पे लगाएं तो खुदावंद हमारे अंदर से, हमारे रूह बदन जान से, हमारे घरों से खुदावंद वो सारी गंदगी, नापाकी, वो गलाजत, जो गंदे काम करते हैं, जो हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं, जो सोचने से, देखने से, बोलने से, खुदावंद किसी भी तरीके से खुदावंद हम कोई ऐसे गंदे काम करते हैं, हमारे अंदर गुस्सा है, नाराजगी है, जेलसी है, झूठ है, फरेब है, खुदावंद यस्सु के नाम से खुदावंद खुदा हमारे अंदर से, हमारे घरों से वो लानते, वो हरामकारियां, वो ज़नाकारियां खुदावंद यस्सु के नाम से खत्म हो जाए। और खुदावंद जहाँ कहीं हमारे कोई रिश्तों में इब्लीस ने दरार डालने की कोशिश की है, खुदावंद हमें तुझसे दूर करने की कोशिश की है, हमारे कहीं मियाँ बीवी के या बहन भाइयों के या बच्चों के रिश्तों में दीवारें खड़ी कर दी हैं, खुदावंद यस्सु के नाम से वो सारी दीवारें आज गिर जाए। और खुदावंद यस्सु हम तुझ में मजबूत होते जाएं, तुझ में जोर पकड़ते जाएं, और हम हर लम्हा हर पल शैतान को अपने पांव तले कुचलते रहें यस्सु के नाम से। खुदावंद कहीं पे भी शैतान को हमारी जिंदगियों में ठहरने के लिए जगह ना मिले खुदाम। कहीं उसने हमारे फाइनेंस को जकड़ा हुआ है, कहीं किसी भी तरह कोई लानत हमारे ऊपर हमारे किसी काम करने की वजह से, या हमारे बाप दादा के, या किसी भी तरह कोई चीज पहनने से, कोई खाने से हमारे ऊपर लानत आ गई है, खुदाम यस्सु के नाम से आज वो सारी लानतें खुदाम खुदा कैंसल हो जाए खुदाम यस्सु के नाम से। खुदाम खुदाम आज मैं खास तौर पे रवि को खुदाम तेरे तख्त के सामने लेके आती हूँ खुदाम, अपने बेटे पे रहम कर, तरस खा खुदाम खुदा यस्सु के नाम से। खुदाम खुदा जो भी उसका केस है खुदाम आज तेरी तरफ से फतह आए खुदाम, आज सहून से खुदाम खुदा अपने बेटे के लिए कलाम भेजना खुदाम खुदा। आज खुदाम खुदा जो भी उसकी सारी प्रॉब्लम है, जो भी उसकी इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, यस्सु के नाम से आज वो खत्म हो जाए। आज तेरा बेटा आजाद हो, बहाल हो खुदाम, हर किस्म के खुदाम खुदा जो भी शैतान ने उसके खिलाफ बोला है, लिखा है, पढ़ा है, जो चिल्ले चढ़ाए हैं खुदाम यस्सु तेरे नाम से आज वो कैंसल हो जाए खुदाम। और तेरा बेटा सरफराज हो, ताकि अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ खुदाम खुदा, अपनी फैमिली के साथ खुदाम तेरे साथ तेरी शुक्रगुजारी कर सके खुदाम यस्सु के नाम से। आज सरफराज करना, कामयाब करना खुदाम खुदा। तेरा बेटा जब जाए तो खुदाम खुदा तेरी उसको फेवर मिले खुदाम यस्सु के नाम से। खुदाम तेरे फरिश्तों को उसके चुगिर्द मुकर्रर कर देती हूँ यस्सु के नाम से। खुदाम खुदा मुमताज की, सिस्टर महेंद्र की खुदाम खुदा, और सारी फैमिली की जो भी दुआएं हैं खुदा तेरे हजूर वो पहुंचे, उनकी खुशबू तुझ तक पहुंचे खुदा खुदा। वो सारी कुर्बानियां जो तेरे बच्चों ने दी हैं खुदा वो तेरे तक पहुंचे, वो कबूल हों खुदा खुदा यस्सु के नाम से। आज जब ये जाते हैं तो खुदाम तेरे फरिश्ते पहले से ही वहां पे मौजूद हों खुदाम, अपने बेटे को आज बड़ी फतह बख्शना खुदाम यस्सु के नाम से। खुदाम हर किस्म की जो अबलेसी कुफ्ते हैं खुदाम यस्सु के नाम से पीछे हटती जाए, और खुदाम तेरा बेटा सरफराज हो, कामयाब हो खुदाम खुदा। तू अपने बेटे को अपने परों में छुपा के रख, संभाल के रख खुदाम यस्सु के नाम से खुदाम। और खुदाम तेरा बेटा खुदाम जब वापस आए तो खुदा फैमिली के साथ मिलकर शुक्रगुजारी कर सके यस्सु के नाम से। प्लीज का कोई भी वार खुदा हमारे ग्रुप पे चलने ना पाए खुदा, जो कुछ भी हमारे ग्रुप के खिलाफ, एक एक फैमिली के खिलाफ, एक एक फर्द के खिलाफ जो कुछ बोला गया, लिखा गया, पढ़ा गया है खुदा यस्सु के नाम से आज कैंसिल कर देती हूँ खुदा। जब हम इस रोटी और पानी को ले तो खुदा सारी लानते, सारी खुदा एक एक लफ्ज, एक एक नुक्ता जो हमारे खिलाफ लिखा है, पढ़ा गया है, जो चिल्ले चढ़ाए गए हैं खुदा यस्सु के नाम से आज कैंसिल कर देती हूँ खुदा। बीमारी की सूरत में या किसी भी परेशानी की सूरत में, कोई डिप्रेशन आ गया खुदा खुदा, कोई फाइनेंस प्रॉब्लम आ गई है खुदा, कहीं जॉब में प्रॉब्लम है खुदा, कारोबार में प्रॉब्लम है, स्टडी में प्रॉब्लम है खुदा, आज सारी तेरे जोर से, तेरी ताकत से खुदा खुदा, तेरी कुदरत से खुदा आज हमारी जिंदगियों से उसके सारे लिंक को, सारी डोरियों को तोड़ देती हूँ, काट देती हूँ खुदा। कोई नामो निशान बाकी ना है रहे खुदा। और हम तेरे लोग, तेरे चुने हुए, तेरे अलग किए हुए लोग, तेरे प्यारे लोग, तेरे निराले लोग खुदा, तेरी यस्सु तेरी दुल्हन खुदा, तुझ में अपने आप को महफूज पाए खुदा, तुझ में अपने आप को खुदा खुदा
अपने परों में तू छुपा ले खुदावंद, हमें अपने सीने से लगा ले खुदावंद, क्योंकि तू ही हमारी हिफाजत कर सकता है, तू ही हमें तसल्ली, इत्मीनान, खुशी, शादमानी, बहाली दे सकता है खुदावंद। हमारा ईमान है, हमारा जोरावर खुदावंद ही सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। कोई ऐसा खुदा नहीं, कोई ऐसा नाम नहीं है जो खुदावंद हमें इन मुश्किलों से, परेशानियों से, दुखों से, मुसीबतों से, बीमारियों से बचा सके, रिहाई दे सके, बहाल कर सके। खुदावंद वाहिद तेरा यीशु नाम है, तेरा लहू है, जिसके वसीले से खुदावंद हम शैतान को खुदावंद खुदा अपने पाँव तले कुचलते हैं, अपने पाँव तले रौंदते हैं। यीशु के नाम से उसका कोई भी असर हमारी जिंदगियों पर रहने ना पाए खुदावंद। आज कलाम को समझने के लिए खुदावंद खुदा बड़ी अपनी हिकमत, दानिश, फहम देना, ताकि खुदावंद तेरे गहरे ये जो भेद है, मकाशफे हैं, हमारे ऊपर खुलें यीशु के नाम से, ताकि हम उस खुदा पाक दामन कमवारी की माने चेस्ट वर्जन की तरह तैयार हों, जिसको तू लेने आ रहा है खुदा यीशु के नाम से। खुदा आज तू अपना बड़ा खुदा अपने कलाम के भेद खोलना, और खुदा हमारे कानों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा हमारे दिल को तैयार कर, ताकि जब कलाम का बीज बोया जाए तो खुदा वो 100 गुना फल लेके आए, और वो कलाम पे अमल करने के लिए हमें कुव्वत, ताकत और अपना फजल देना, ताकि खुदा तेरे हुक्मों पे अमल करते हुए खुदा यीशु हम तेरी मानिंद बनते जाए, और खुदा तुझ में पैवस्त हो जाए, तुझ में जोर पकड़ते जाए यीशु के नाम से। खुदा इस दुआ को हम सब मिलकर बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हम ईमान से इस पानी को पिए और रोटी को लें, ताकि खुदावंद हम में जोर पकड़ता जाए, हम मरते जाए और खुदावंद हम में जिंदा होता जाए। आमीन। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड जीस। आज हम पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब, उसका 12 चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं, और उसकी पहले ही कह लें कि 2-3 आयतों पे हम अभी तक बात कर रहे हैं। तो हमने थोड़ा सीखा था इस औरत के बारे में कि इसने जो यानी ये औरत कौन है, ये थोड़ा हमने सीखा, और इसने जो आफताब को ओढ़ा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सीखा कि ये औरत जो है ये कलीसिया है, नए अहदनामे की कलीसिया है, और इसने जो आफताब को ओढ़ा हुआ है वो यानी खुदावंद के कह लें जलाल को पेश करता है कि खुदावंद जिस तरह चमक, उसका चेहरा जिस तरह रोशन होता था, या खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जो जलाल ठहरा हुआ है, या जलाल की रूह जो ठहरी हुई है, वो ही जलाल की रूह इस कलीसिया पे या इस औरत पे या हमारे ऊपर ठहरी हुई है। और ये किस वजह से होती है? जब हम रास्तबाजी के काम करते हैं, खुदावंद यीशु ने जो हुक्म दिए हैं, जब हम पे अमल करते हैं, तो हमारे कह लें जलाल जो है वो हमें घेरे रखता है। और चाँद का हमने सीखा था कि ये जो इसके पाँव के नीचे चाँद है इस औरत के, वो खुदावंद के फजल को पेश करता है कि उसकी फजल ही की वजह से हम जो है बचाए गए हैं या रास-पास ठहराए गए हैं। और जब हम उसकी जैसे चाँद जो है रात पे हुक्मरानी करता है, इसी तरह हम भी तारीकी में कह लें चमकते हैं, या तरीकी पे बादशाही करते हैं अपने रास्तबाजी के कामों के वजह से या वसीले से। यानी हमारे अंदर ऐसी कोई वो नहीं है, हम चाँद जैसे सूरज से रोशनी लेता है, इसी तरह हम भी अपने यीशु से जैसे कह लें फजल लेते हैं, और या रास्तबाजी के जब काम करते हैं तो
फिर हम जो है वो रोशनी की तरह चमकते हैं और खुदावंद का फजल जो है हमारे ऊपर होता रहता है। ये बहरहाल हमने गलतियों के खत में पढ़ा था, है ना, कि उसके फजल के वसीला से हम खुदावंद के साथ चलते हैं। और जैसे ही हम गुनाह करते हैं तो उस फजल से पीछे हट जाते हैं या गिर जाते हैं। तो लेकिन जब हम फिर से खुदावंद के साथ चलना शुरू करते हैं, वो खुदावंद हम पे रहम करता है और खुदावंद फजल करता है, तो उसमें हम कायम रहते हैं। तो ये चाँद जो है खुदावंद के फजल को कह लें कि पेश करता है। और खुदावंद, ये महल हमने रोमियो में पढ़ा था कि पालूस रसूल हमें बताता है कि अ, ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई होती है, यानी खुदावंद जिस पर हम कायम है, यानी ये इस पर हम खड़े हुए हैं। जैसे कहते हैं ना कि स्टैंड ले लिए है कि अब हम खुदावंद के साथ ही चलेंगे। तो एक किस्म का कायम रहना या खड़े रहना, ये खुदावंद के फजल को पेश करता है। और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करते रहते हैं, ये रोमियो के खत में हमने पढ़ा था। और 12 सितारों का जो ताज इसने पहना हुआ है, वो हमने देखा था कि 12 सितारे जो हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के जो 12 शागिर्द थे, उसको पेश करता है। और उसकी जो तालीम है, यानी ये कलीसिया जो है, यानी ये औरत जो है, ये कलीसिया है, ये चर्च है, पूरी दुनिया में जो मसीही हैं हम। तो उसकी जो 12 शागिर्दों के ज़रिए, रसूलों के ज़रिए जो खुदावंद की, जो खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है, जो मज़बूत तालीम है, सच्ची तालीम है या पूरी तालीम है, उस पे जब हम अमल करते हैं और उस पे कायम रह के या उसमें ज़िंदगियाँ गुज़ार के जो फ़तेहमंद हम ज़िंदगियाँ गुज़ारते हैं, ताज उसको पेश करते हैं। यानी खुदावंद के कह लें रास्तबाज़ी के काम करके या उस पे कायम रह के, जो खुदावंद का कलाम है, जो रसूलों के ज़रिए हमें मिला है। हमें तो पता नहीं था ना, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने ये जो अंजीलें लिखी या आगे खुदावंद के बंदों ने जो खत लिखे, उसके वसीले तक हमें तालीम जो है मिली खुदावंद की, खुदावंद यीशु मसीह की, है ना? तो उस पे जो अमल करते हैं और फिर रूहानी तौर पे हम जो जंगें लड़ते हैं और फ़तह हासिल करते हैं, ये ताज जो है, उसको पेश करता है। जैसे हमने वो तीमुथियुस के खत में पढ़ा था कि पौलुस रसूल कहता है कि दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर इसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सहरा नहीं पाता। यानी हम जंग जो करते हैं, रूहानी जंग जो हमारी जारी है, और ये हमने सीखा कि हम जब कैले मसीह में आ ही जाते हैं तो हमारी जंग जो है शैतान के साथ शुरू हो जाती है। तो जैसे-जैसे हम फतह पाते जाते हैं, कलाम को या हुक्मों पे अमल करके, तो वो ताज जो है या वो सेहरा जो है, या वो फतह जो है हम हासिल करते जाते हैं। तो इसलिए ताज जो है फ़तेहमंद ज़िंदगी को पेश करता है। और सितारे, ये 12 सितारे जो हैं, वो रसूलों की तालीम को पेश करते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है ना? तो ये हमने थोड़ा-थोड़ा सीखा था। आज हम सीखेंगे कि ये जो औरत है, इसके बारे में लिखा है कि इसको दर्द लगे हुए हैं, जनने के से दर्द लगे हुए हैं। ये दूसरी आयत में मेरा बच्चा जनने की तकलीफ में है। वो हामला थी और दर्द ज़ह में चिल्लाती थी और बच्चा जनने की तकलीफ में थी। तो आज हम ये जो तकलीफ है या ये दर्द जो है, जो बच्चा जनने का होता है, ये इस कलीसिया को क्यों लगा हुआ है या उसके क्या मीनिंग है ना? तो ये थोड़ा-सा हम सीखेंगे। हमारे साथ रीडिंग में अंजना है और मेहल माया है। दोनों ही जी। आधी हिंदी और ओके। पंजाबी। वही मैं कह रही हूँ, आज समर ने दोनों ही हिंदी और पंजाबी कर दिया। तो उर्दू में भी हमारे साथ कोई हो ही जाए, अगर कोई विलिंग है तो। मैं बैठी। थैंक यू। तो एक तो बस हम ये एक आयत पढ़ते हैं, यानी ये जो दूसरी आयत है,
جس میں ہمیں ملتا ہے مکاشفہ 12 باب، اس کی دوسری آیت صرف ہم پڑھتے ہیں۔ ਜੀ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ। آمین۔ ہاں جی جی مایا اور وفا۔ وہ اور حاملہ وہ تھی گرभवती हुई اور चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी। आमीन। آمین۔ جی وفا۔ وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ ہاں جی، وہ حاملہ تھی اور تکلیف میں تھی، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ہم تھوڑا دیکھیں گے کہ یہ تکلیف میں کیوں ہے۔ یہ تو کلیسیا ہے، یعنی ہم سیکھ رہے ہیں، ہے نا، اس دن سے کہ یہ تو چرچ ہے، تو اس کو کیسے یہ جو درد ذہ جو ہے لگے ہوئے ہیں، یہ جننے کے سے درد لگے ہوئے ہیں، ہے نا۔ تو اس کے کیا میننگ ہے، یہ ہم تھوڑا سا آج دیکھیں گے۔ بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا، لیکن چلیں جن کو نہیں پتا ہم تھوڑا سا سیکھتے ہیں کہ جو جو چرچ ہے یا جو کلیسیا ہے، جو ہم دعائیں کرتے ہیں، جو درد سے ہم دعائیں کرتے ہیں، تو ان کو یعنی کہتے ہیں کہ یہ درد ذہ لگا ہوا ہے، اور یہ ایک فتح مند زندگی کے لیے لازم کہہ لیں جز ہے، یہ لازمی ہے کہ ایک جو کلیسیا ہے یا چرچ جو ہے یا جو دلہن ہے، اس کو اس طرح کے درد جو ہیں وہ لگے ہوں، اس طرح کی جو کہہ لیں تکلیف ہے، اس کو ہونا ضروری ہے ایک کلیسیا کے اندر۔ یہی ہمیں کیا کرتی ہے، پاک روح میں معمور کرتی جاتی ہے، پاک روح میں بڑھاتی جاتی ہے۔ یہ جب درد لے لے کے ہم دعائیں کرتے ہیں، یہ درد میں جو ہم کراتے ہیں، یعنی خداوند کے لوگ جو پاک لوگ ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں، جو پہلے پھلوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ جیسے ہم سیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دلہن ہے، اس کو پہلے پھل سے ایک کیا لگتا ہے تشبیہ دی گئی ہے، یا خداوند نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس طرح پہلا پھل تھا، اسی طرح اب جو دلہن ہوگی وہ پہلا پھل ہوگا، ہے نا۔ تو جو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے، تو اس کو یہ درد لگے ہوئے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم یسوع کی مانند تیار ہوں، جو کہیں ان سے کچھ کہہ لیں کہ غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کچھ کسی طریقے سے بھی وہ گر جاتے ہیں، اس یا پہلے جیسی محبت اس میں نہیں رہتی، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ کہہ لیں کہ کراتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہے نا، اور وہ اپنے آپ کو پھر اس لیول پہ لانا چاہتے ہیں، یا اس جگہ پہ، اس رتبے پہ لانا چاہتے ہیں جس پہ وہ پہلی سی جو محبت جیسے ہم کرتے ہیں خدا سے۔ تو اس لیے جب وہ رو رو کے کہہ لیں دعائیں کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو پھر سے پاک صاف کرنے کے لیے خداوند کی حضوری میں، خداوند کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، اور معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور کیا وہ کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، کرا رہے ہوتے ہیں، اور درد میں ہوتے ہیں کہ خداوند ہمیں پھر سے وہی مزہ دے، پھر سے وہی زور دے، وہ طاقت دے، وہ مسا جو ہے پھر سے ہمارے اوپر ٹھہر جائے۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ کرا رہے ہیں، وہ درد میں ہیں کہ کہیں ہم یعنی خداوند آئے تو ہم رہ نہ جائیں، ہم پیچھے نہ رہ جائیں، اور ہمارے جو ہم پہلے پھلوں کی طرح تیار ہوں، ہم خداوند کے پاک روح میں بڑھتے جائیں، خداوند میں پیوست ہوتے جائیں، یسوع کی مانند بنتے جائیں۔ تو جب یہ اس طرح لے کے دعائیں جو لوگ کرتے ہیں، وہ ہیں پہلے پھل، یا وہ ہیں وہ درد جو ہے، وہ جننے کے سے درد جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ کلیسیا میں جو ہے وہ ان کہہ لیں دردوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے، جو ہمارے کہہ لیں، ایک تو ہم اپنے لیے درد لے لے کے دعائیں کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو کہہ لیں تیار کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ
यीशु की दुल्हन की मानिद हम अपने आप को तैयार करें। दूसरा हमारे जो खादम हैं, ये हमने पिछले दिनों ही पालूस रसूल के बारे में पढ़ा कि वो क्या, पालूस रसूल कहता है कि वो जाँफशानी से और रो रो के किसके लिए, कलीसिया के लिए, शागिर्दों के लिए दुआएं करता है, ताकि वो क्या करें, मसीह की मानिद तैयार हों, पूरी खुदावंद की जो कामिल मर्जी है उसमें वो कायम रहें, है ना। तो इसलिए जो खुदा के खादम या जो भी लोग हैं, यानी कलीसिया में जो हम एक दूसरे के लिए दर्द ले लेके दुआएं करते हैं, कुछ जो भी कह लें कि अभी जिनकी रूहें नहीं बची, हम उनके लिए दुआएं करते हैं, और कह लें दर्द लेके, और कुछ जो कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, कहीं गुनाह में गिर जाते हैं, कहीं उनमें कोई बीमार है, कोई मुश्किल में है, परेशानी में है ना। तो जब हम या हमारा जो कह लें खादम है, दुआएं करता है उस अपनी कलीसिया के लिए, तो उसको भी कहते हैं कि उसको दर्द सा लगा हुआ, क्योंकि वो किसके लिए दुआ कर रहा है। अभी हम वर्सेस पढ़ते हैं जो जो पालूस रसूल ने यानी हमें दिखाया या हमें समझाया कि असल में ये जन्मे के से दर्द जो है वो क्या है। तो इसलिए कुछ लोग अपने आप के लिए कर रहे हैं, कुछ दूसरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही क्या हो रहे हैं, दर्द लगे हुए हैं उनको। उनको दर्द किस बात के लगे हुए हैं कि किसी भी तरह हम तैयार हो जाए, कोई भी आ, किसी भी तरह हमने गुनाह कर दिया है तो हम तौबा करें, या वो दूसरों के लिए दुआएं करते हैं कि खुदावन तू उसको माफ कर, वो पहले जिस तरह तेरे साथ चल रहा था, चल रही थी, उसी तरह से दोबारा से खुदावन तेरे साथ चलना शुरू हो जाए, तेरे हुक्मों पे अमल करना शुरू हो जाए, तेरी आमद के लिए तैयार हो। तो ये है जन्ने के से दर्द लगे हुए, और इन दर्दों में से जैसे पहले हम जब गुजरते हैं तो आ, तंगी, तकलीफ, मुसीबतें, बीमारियां, या हम पालूस रसूल की देखते हैं कि जिंदगी में आ, यानी उसने अपने कलीसिया के लिए जो शागिर्द थे उनके लिए रोजे रख रख के दुआएं करता था, रो रो के दुआएं करता था, जहां पे भी उसको जाना पड़ता था वो जाता था। और जैसे उस दिन ही हम माल की उसमें पढ़ रहे थे, अम, जावेद हमसे बात कर रहा था, है ना, कि वो रात रात भर बैठ के खुदाम का कलाम जो था कलीसिया के साथ शेयर करता था कि किसी तरह से जो कुछ मेरे पास है मैं इनको बता दूं या इनको सिखा दूं, ताकि ये भी तैयार हो जाए। फिर एक जगह पालूस रसूल ने कहा कि तुम मेरी मानिंद बनो जिस तरह के मैं मसीह की मानिंद बन रहा हूं। तो उसकी यही कोशिश थी, यही दुआ थी, और उस कोशिश को या उस काम को पूरा करने के लिए जो भी उसको मुसीबतों में से, दुखों में से, तकलीफों में से गुजरना पड़ता था, जैसे वो उसमें हमने देखा कि पूरी रात ही कह लें वो कलाम जो है कलीसिया के साथ शेयर कर रहा था, है ना। तो ये हैं जन्ने के से दर्द लगे हुए। तो ये हम सबको लगे होने चाहिए, तभी ये कह लें कि ये बच्चा पैदा होगा, तभी वो पहला फल जो है वो तैयार होगा, तभी हम खुदा यीशु मसीह की मानद बनेंगे। जब तकलीफों में से, दुखों में से, बीमारियों में से गुजरते हैं तो ये असल में कह लें हमारी ट्रेनिंग हो रही है, हमारी तैयारी हो रही है। इस तकलीफ में से गुजरे बगैर कोई भी तैयार नहीं हो सकता। इसलिए कभी ये ना कहा करें कि ये तकलीफ मुझसे दूर हो जाए, ये बीमारी चली जाए, जाने के लिए कहना है, ये नहीं मैं कह रही कि उसको कहीं लगी रहे, लेकिन उसमें जो खुदावंद हमारे करैक्टर को बना रहा है ना, हम जो तकलीफ आई हुई है उसमें हमारा रवैया क्या है, उस पे हमारा खुदावंद पे ईमान किस तरह का है, असल में वो हमारी ट्रेनिंग हो रही है। इसके लिए ये ना कहा करें कि ओ, ये मुश्किल, ये परेशानी, ये तकलीफ जो है दूर हो जाए। उसमें जो खुदावंद आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, या दुआ करने के लिए कह रहा है, या दर्द लेके इस तरह, या हमसे कुछ हो गया, कोई गलती हो गई है,
तो उसकी माफी मांगे, तौबा करें, ये सीखना है हमने। और महल रोमियो की शायद खत में लिखा है कि सब्र हमारे अंदर होना चाहिए, हलीमी होनी चाहिए, पुख्तगी आनी चाहिए, ईमान में हमें मजबूत होना चाहिए। तो ये तकलीफों में हम सीख रहे हैं। ये जब दर्द आता है, उस दर्द में जो हम दुआएं करते हैं, कभी भी आप जब बीमार होते हैं, आपने सोचा देखा ही होगा अपने कि जब हम उसमें दुआएं करते हैं तो खुदावंद की एक हजूरी या एक कह लें मसा जो है हमारे ऊपर गहरे तौर पे छाया होता है। तो इसलिए ये दर्द लेना या दर्द में दुआ करना, ये कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है। तो ये वही लोग कर रहे हैं जो अपने आप को चाहते हैं कि हम यीशु की माने तैयार हों। सब लोग क्या करते हैं, बीमारी आई, मुश्किल आई, वो दूसरों पे ही इल्जाम लगाते रहते हैं, ये इसकी वजह से हो गया, ये इसकी वजह से हो गया, है ना? या उसने मुझे देखा तो मेरी इस वजह से हो गई या उसने मेरे हम कभी भी अपने ऊपर नहीं देखते। हम कभी भी ये नहीं सोचते मैंने कुछ शायद मेरी खुदा के साथ ऐसा रिश्ता नहीं था, या मैंने कुछ ऐसा गलत सोच लिया था, इस वजह से ये परेशानी आई, ये मुश्किल आई, ये बीमारी आई, या मैं खुदावंद को उस तरह का टाइम नहीं दे रहा था। इसलिए खुदावंद ने मुझे सिखाने के लिए या खुदावंद अपने आप में मजबूत करने के लिए ये जो मुश्किल है, ये परेशानी है। हम ऐसा नहीं सोचते। हमारे कह लें बहुत सारे मसीही दूसरों के ऊपर इल्जाम जो है वो लगाते रहते हैं, और आपको पता है इल्जाम लगाना शैतान का काम है, हमारा नहीं है। तो इसलिए हम उस मुसीबत में हम पालूस रसूल की जिंदगी में देखते हैं, हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी, हम स्तिफनस की जिंदगी में देखते हैं कि जब या पालूस और सिलास जब उनको कैद में डाला गया, पतरस को, उन्होंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया कि इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से। उन्होंने उसमें दुआएं की, है ना? जैसे पालूस रसूल का भी हम देखते हैं कि वो कैद में ही ज्यादा देर रहा है, कोड़े खा रहा है, उसको बैंत मारे जा रहे हैं, सोटियों से मारा है ना? और पतरस को, बाकी भी खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों को, लेकिन हमने ये नहीं देखा या स्तिफनस को जब वो संसार कर रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे, तो वो उनके लिए दुआ कर रहा था। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब तकलीफ में होते हैं तो हम दूसरों के ऊपर, अपने हस्बैंड के कह लें, बीवी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, कि तेरी वजह से ये हो रहा है। तो हमारी जो खुदावंद जो क्या कहते हैं एक करैक्टर बना रहा है, या हमारे अंदर से वो पुरानी इंसानियत या वो निकालना चाहता है, हम वो नहीं कर रहे। तो इसलिए फिर हम यीशु की मानद बन भी नहीं रहे। तो इसलिए जब ऐसी कोई आती है तो हमें दर्द लेके दुआ करनी है कि ओ खुदावंद मुझसे ये गलती होगी। जैसे मैं कहूँ कि जो दाऊद था वो गिर जाता था खुदावंद के कह लें कदमों में और माफी मांगता था, खुदावंद मैंने ये तेरे खिलाफ गुनाह किया या मैंने ये किया। वो ये नहीं कहता था कि किसी ने कुछ किया। तो इसलिए जो इस तरह से तैयार हो रहे हैं दर्द लेके अपने लिए दुआ करते हैं, या किसी ने अपनी कोई मुश्किल या परेशानी, और कुछ लोग नहीं भी कहते। हमने कल अपने कल चर्च में ऐसा ही देखा है कि लोग जब किसी को देखते हैं उसमें कोई कह लें बच्चे हमारी ठीक नहीं चल रहे, तो वो उस बच्चे के लिए दर्द ले लेके दुआएं करना शुरू हो जाती है कि खुदाउन जो कुछ भी इसकी जिंदगी में चल रहा है, खुदाउन तो इसको पाक साफ कर, या इसको अपनी मानित बना। इस तरह दर्द लेके दुआएं करना यानी जरूरी नहीं है। जैसे हम कहेंगे कि जो माँ बाप है बच्चों की कोई ऐसी चल रही है, कोई खराब चल रहा है, किसी को कह लें कोई नशे की या उसकी कोई लत लग गई या कोई ऐसी गलत काम कर रहा है या झूठ बोलने की या ऐसी, तो हम दर्द लेके दुआएं करें, ना कि उसको ही शर्मिंदा करते रहे। हमने मतलब मैंने कह लें ऐसा अपने चर्च में देखा और हमें बाइबल भी यही बताती है। तो इसलिए दर्द लेके उस बंदे के लिए दुआ करें, ना कि हम उसको शर्मिंदा करें। या आप हमारे लिए हमारे अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो हम ऐलान ना करते फिरें कि ओ जी मेरे अंदर ये हो गया। नहीं, हम दर्द ले लेके अपने लिए दुआएं करें। तो ये कलीसिया में या इस औरत में ये जो जन्ने के से दर्द है,
اس کا مطلب کہہ لیں کہ یہ ہے کہ جب ہم درد لے کے درد میں کراتے ہیں کہ نہیں مجھے یسوع کی مانند بننا ہے، مجھے اس گندگی میں، اس ناپاکی میں، یہ آرام کاری ہے، جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں زندگی نہیں گزارنی، یا بیمار ہیں، یہ لعنتی بیماریاں ہماری زندگی میں آ گئی ہیں، ہے نا، تو ہم درد لے کے دعا کریں کہ خداوند مجھے اپنی مانند جو ہے وہ تیار کر۔ تو ہم ایک دو جو حوالے ہیں وہ پڑھتے ہیں، کافی ہیں، لیکن ایک تو پہلا ہم حوالہ پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا 16 باب اور اس کی 20 آیت۔ تو میرا خیال سمجھ آپ لوگوں کو لگ گئی ہے کہ یہ جو درد میں عورت ہے اس کے کیا میننگ ہے، کہ یہ ایک تو خود تیار ہو رہی ہے، اور جو کلیسیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جب درد لے کے دعائیں کرتے ہیں، یہ اس کو پیش کر رہا ہے۔ جی یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 20 آیت سے پڑھتے ہیں۔ جی ਠੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸੋਗ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਜਗਤ ਆਨੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਤੀਵੀਂ ਜਣਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਦੀ ਘੜੀ ਆ ਪੁੱਜੀ। ਪਰ ਜਦ ਬਾਲਕ ਜਾਣ ਚੁੱਕਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਮੀਨ। ہاں جی آمین۔ جی بابا مایا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم روگے اور ماتم کرو گے مگر دنیا خوش ہوگی۔ تم غمگین ہوگے لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا۔ جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے دکھ کی گھڑی آ پہنچی، لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی۔ آگے بھی نہیں ٹھیک ہے بس۔ اوکے۔ ہاں جی مایا، مایا ہے ہمارے ساتھ؟ ہاں، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم روگے اور ولاپ کرو گے پرنتु संसार आनंद करेगा। तुम शोक होगे परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बन जाएगा। जब स्त्री जनने लगती है तो उसको शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची, परंतु जब वो बालक जन्म चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। आमीन। آمین۔ ہاں جی تو جب ہم غمگین ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، درد میں ہوتے ہیں، تو جیسا شاید ہم نے پیچھے بھی سیکھا تھا کہ خداوند نے یہ ہمیں بتایا ہے یا سکھایا ہے کہ یہ کچھ دنوں کے ہیں، جیسے محم کاشفا کی کتاب میں کہ 10 دنوں کا ذکر آتا ہے، یعنی گنے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ساری عمر ہی نہیں ختم ہوں گے، ہے نا۔ تو یہ دکھ، یہ درد، یہ تکلیفیں جو ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہیں، اس میں خداوند کہہ لیں جیسے کہہ لیں تیار کر رہا ہے لیکن جب ہم اس درد میں سے، تکلیف میں سے گزریں گے، اپنے آپ کو ایک خداوند یسوع مسیح کی مانند جو ہے کہہ لیں بنا رہے ہیں، جو کریکٹر خداوند ہمارا بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے اس پیریڈ میں، تو لیکن جب اس میں سے نکل جائیں گے تو کیا ہے، ہم خوشی پائیں گے، جیسا کہ خداوند نے ہمیں وعدہ کیا کہ یہاں دکھ اٹھاتے ہو لیکن آسمان پہ ہمیں آرام ملے گا، یا وہ دن جو ہے وہ آنے والا ہے نا۔ تو اس لیے یہ دکھ، یہ غم، یہ تکلیف جو ہے تھوڑے ہی دیر کے لیے ہے۔ اس لیے جس طرح کے یعنی مثال کے طور پہ یہی کہا ہے کہ عورت جب جننے لگتی ہے تو وہ دکھ میں ہوتی ہے، اس کی گھڑی جو ہے وہ دکھ کی آ پہنچی ہے، لیکن پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے یا وہ ایک اس درد میں سے گزر جاتی ہے تو پھر وہ خوش ہوتی ہے اور اپنی کہہ لیں وہ دکھ کی گھڑی کو بھول جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہم جب دکھ میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو اگر اس میں ہمارا ایک میں کہوں گی کہ رویہ جو ہے، جو خداوند چاہتا ہے، اگر اس طرح کا ہوگا تو وہ گھڑی جو درد کی ہے یا تکلیف کی ہے وہ ایک تو میں کہوں گی کہ کم بھی ہو جائے گی، جس طرح ہم پالوس اور سلاس کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ پالوس اور سلاس ہی تھے، ہے نا وفا سوری تو وہ جب جیل میں تھے
तो वो गीत गाना शुरू हो गए, कह लें हाँ जी। शुक्रगुजारी करना शुरू हो गए। तो उनका कैसे एकदम से ही कह लें, मैं कहूँगी कि वो ताले खुल गए, जेल के दरवाजे खुल गए और वो आज़ाद हो गए। तो इसी तरह अगर हम भी बीमारी में हैं या उस दुःख तकलीफ में हैं, उस वक़्त गम है, लेकिन अगर हमारा उसमें रवैया जो है वो ठीक होगा, खुदावंद पे हमारा ईमान होगा, या आपको याद होगा कि ये ना कहा करें कि आज़माइशें ना आए, दुःख मुसीबतें ना आए। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को जब वो आज़माया जाने वाला था, तो खुदावंद ने कहा कि शैतान ने तुझे या तुम सबको यानी मुझसे माँग लिया कि वो तुम्हें पटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए शफ़ायत की, या पतरस के लिए खुदावंद ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने, कि तुम्हारा ईमान ना जाता रहे। खुदावंद ने ये नहीं कहा कि आज़माइश नहीं आएगी, मुसीबतें नहीं आएँगी, है ना? खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से, वो आएँगी, वो ही तो तैयारी है हमारी, है ना? लेकिन खुदावंद ने ये कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने, कि मैंने तुम्हारे लिए दुआ की, शफ़ायत की कि तुम्हारा ईमान ना जाता रहे। इसलिए ये जो मुश्किलें आती हैं, बीमारी आती है, उसमें खुदावंद हमारे ईमान को देख रहा है कि कहीं वो तो नहीं डामाडोल हो गया, कहीं हम खुदावंद से दूर तो नहीं हो गए, कहीं हम सुस्त तो नहीं पड़ गए। इस तरह की जो एक सोच ही कह ले आ जाती है, तो इसका मतलब है कि हम उस तरह से फिर तैयार नहीं हो रहे। तो खुदावंद असल में उस वक़्त कह लें हमारे ईमान को मजबूत कर रहा होता है, या हमें ईमान के एक ऊपर लेवल पे, दर्जे पे लेके जा रहा होता है ना? और हमने ये बाइबल में सीखा भी है कि ईमान के भी लेवल हैं। कहीं किसी जगह खुदावंद ने कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है, तेरा ईमान बहुत खूबसूरत है, इस तरह भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। तो हमें खुदावंद इस जब दर्द की घड़ी में होते हैं, आपने शायद सुना है कि कुछ औरतें जैसे होता है, उस पीरियड में भी कह लें कि गालियाँ दे रही होती है, अब या अपने हस्बैंड को ही कुछ-कुछ कह रही होती हैं बुरा-भला, तो उसका करैक्टर नहीं चेंज हो रहा, है ना? वो खुदावंद पे भरोसा नहीं कर रही। तो हमारा भी जब कह लें, मैं कहूँगी कि इस तरह का रवैया हो कि हम दूसरों पे ही, एक टेस्टमनी है, शायद एक दफ़ा पहले भी मैंने ज़िक्र किया था, वो इंडिया में ये कुछ साल पहले जहाज़ जो था वो क्रैश हो गया, और वहाँ उसमें एक खुदावंद का खादम था। तो वो कहता है कि ज़ाहिर है वो भी उससे पहले ही यानी जहाज़ जो जैसे होता है झटके लगाना शुरू कर देता है ना? तो जब ऐसा होना शुरू हो गया तो लोग जो थे, बजाय किसी कह लें अपने-अपने खुदाओं को याद करने, वो ये गालियाँ निकालना शुरू हो गए। ऐसे-ऐसे बैड जो लफ्ज़ आपको पता है कुछ लोग बोलते हैं ना, बुरा-भला कहना जो है वो शुरू हो गए। लेकिन ये खुदावंद का बंदा था, इसने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा और खुदावंद से दुआ की, और अम कह लें कि ये गिरा, इसको चोटें लगी, लेकिन खुदावंद ने इसको बचा लिया। लेकिन मैं टेस्टिमनी का ये असल में बताना चाहती हूँ कि वो कहता है कि जो कुछ हमारा कह लें रवैया होता है ना, जब मुश्किल आती है, परेशानी आती है, हमारे मुँह से जो कुछ निकलता है, वो बड़ा मायने रखता है। खुदावंद उसको सुन रहा है, देख रहा है। हम इस कह लें स्टडी में यही सीख रहे हैं कि खुदावंद हमें अंधेरे में है, कहीं पे भी हैं, खुदावंद हमें देख रहा है। खुदावंद हम जो हमारे दिल में ख़्याल आते हैं, ज़हन में ख़्याल आते हैं, वो सुन रहा है। हम किसी से नहीं भी कह रहे, खुदावंद वो सुन रहा है, कैसा हमारा रवैया है, कैसा हमारी सोच है। तो कहता है कि वो इस तरह लोग जो हैं, जो हर वक़्त यही इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और बुरा-भला कहते रहते हैं, गालियाँ निकालते रहते हैं, तो जब वो मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तब भी यही करते हैं। और एक और हमने ये कल-परसों ही जो पढ़ा था कि उन्होंने तौबा नहीं की। ये महल काशबा की किताब में हमने पढ़ा है ना, कि वो आफ़तें आ रही हैं, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उस वक़्त भी अपने बुतों की पूजा करते रहे, और हरामकारी और वो सारी जो है वो करते रहे, और उन्होंने तौबा नहीं की। तो बिल्कुल इसी तरह अगर जब हमारे ऊपर ये ऐसी आती हैं मुश्किलें, परेशानियाँ, बीमारियाँ, उसमें हम अपने गुनाहों के, या कहीं कुछ हो गया है, या देखने से, सोचने से, तो उस वक़्त हम माफ़ी माँगे, तौबा करें।
ताकि खुदावंद हमें उसमें से निकाले और हमारा ईमान जो है एक दर्जा और आगे बढ़े, है ना? तो खुदावंद असल में ये चाहता है कि ये दर्द हमें लगे रहें, हर वक्त कह लें कि लगे रहें, लेकिन कभी ये बड़ी-बड़ी मुश्किलें आती हैं या कुछ तो ज़्यादा तेज़ी से कह लें, वो दर्द जो है लग जाते हैं। तो ये दर्द आना या ये दर्द लगना हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। एक और हवाला हम पढ़ते हैं रोमियो 8 बाब उसकी 26 आयत। रोमियो 8 बाब उसकी 26 आयत। और जी, वफ़ा और माया। ओके। पढ़ूं? हाँ जी, पढ़ो। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना है हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नियत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। आगे भी नहीं बस ठीक है। हाँ जी, माया और वो अंजना। इस तरह आत्मा भी कट्टे इस तरह ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਓਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸ ਵਸਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਅਕਥ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਆਮੀਨ आमीन। माया इसको अब हाँ 30 आयत तक की पढ़ना, उसमें और ज्यादा हम जी ठीक है। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमीन आमीन आमीन। हाँ जी, तो इसमें भी हम यही देख रहे हैं कि रूह जो है वो आहें भर भर के जैसे कल शिफायत कर रहा है, हमारी शिफायत कर रहा है, यानी हमें हमारे ऊपर जब कह लें हमें कई दफा समझ नहीं लग रही थी, जैसे मैंने काफी दफा तो आप पाक रूह में यानी गैर जुबानों में दुआ करें, लेकिन अगर जिनको नहीं भी है वो भी इस तरह से दुआ करें कि खुदावंद मुझे नहीं समझ लग रही, या खुदावंद पाक रूह मेरी मदद कर, है ना? किस तरह से दुआ करूं, यानी हम अपने जिस्म से मैं कहूँगी कि जिस तरह ये देखा कि लोग जो हैं दूसरों के ही बारे में सोचते रहते हैं, मेरा इस वजह से ये मुश्किल आ गई है, मुझे किसी ने नजर लगा दी है, मुझे ये हो गया, तो हम या मेरे ऊपर किसी ने कोई जादू टूना कर दिया, कोई तवीज धागा कर लिया, हम दूसरों के बारे में दुआ में भी बैठ के यही सोचते हैं, और हम ये सोचते रहते हैं कि इसको भी इस तरह हो, यानी बदला लेने का, इंतकाम लेने का, या इस तरह की हमारे दिल में ख्याल जो है वो आते रहते हैं। लेकिन हम जब खुदावन के जो लोग हैं जब दुआ करें तो क्या लिखा है कि रूह में दुआ करें, क्योंकि रूह खुदावन का रूह जो है वो क्या कर रहा है हमारे लिए आहें भर भर कर शिफायत करता है,
اور वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक दुआ करता है। खुदावंद किसी का बुरा नहीं चाहता, खुदावंद किसी का कह लें ये नहीं चाहता कि जैसे मेरे साथ हो रहा है ऐसे किसी और के साथ भी हो। लेकिन हम इंसान जो हैं जिस्मानी तौर पे यही सोचते हैं कि मेरे साथ हो रहा है ऐसा, मैं बीमारी में हूँ या मैं मुश्किल में हूँ, तो जिसने से मेरे साथ ये किया है वो भी इसी मुश्किल में से या इस दर्द में से तकलीफ में से गुजरे। तो इसलिए हमें उस वक्त जब दर्द में होते हैं तो खुदावंद पाकरू की कह लें रहनुमाई से जो है वो दुआ करनी चाहिए, ताकि क्या करें उसकी मर्जी के मुताबिक जो है दुआएं हों, खुदावंद की मर्जी के मुताबिक जो वो उस वक्त चाह रहा होता है कि यानी मेरा ख्याल है मैं यानी अपनी सोच कह रही हूँ कि हम जो हैं हम अपने बारे में सोचे, जिस तरह बार बार मैं यही कहती हूँ कि दुल्हन जो है वो अपने आप को जज करती है। इस वक्त वो अपने आप को अगर जज कर रही है तो वो वक्त आएगा कि दुल्हन जो है फिर दूसरों को जज करेगी। लेकिन अब इस वक्त जो है दुनिया में रहते हुए दुल्हन जो है उसने अपने आप को, जो ब्राइड ऑफ क्राइस्ट है, उसने अपने आप को जज करना है कि मेरे ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री तो नहीं रहेगी। जिस तरह हम भी अगर आप मैं कहूंगी कि जब शादी हो रही होती है तो जो ब्राइड है या दुल्हन जो है क्या कर रही थी, वो अपने कपड़ों, अपने जेवर या मेकअप कह लें या जो भी तैयारी हो उसका ज्यादा फोकस क्या होता है, अपने ऊपर होता है। मैं क्योंकि ये दिन कह लें कि उसका होता है तो वो अपने आप को तैयार कर रही होती है ना। तो बिल्कुल इसी तरह हम जो यीशु की दुल्हन है उनका पूरा फोकस अपने ऊपर होना चाहिए। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दूसरियां दी जिहड़ी शतीर है तिनका है वो ना निकाल, पहले अपनी आंख का शतीर निकाल। तो ये हमें खुदावंद ने कहा है, जो कह लें पलौठे के तौर पे बुलाए गए हैं, जो उस दुल्हन की माने तैयार हो रहे हैं, जो पहले फलों की माने फल की माने तैयार हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमें नहीं पता, हम जो जिस्मानी है ना जिस्म के लिहाज से सोचते हैं तो हम कह लें कि बदला लेने के या दूसरों का बुरा सोचने के या दूसरों के साथ भी ऐसा ही हो, इस तरह की सोच हमारे ऊपर हमारे अंदर चलती रहती है। इसीलिए खुदावंद जो है हमें कह रहा है कि अम, हम क्या करें, रूह की हिदायत से, रूह की रहनुमाई से दुआ जो है करें और वो हमारे लिए आहें भर भर कर रो रो के कह लें, जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि वो कलीसिया के लिए रोजे रख रख के रो रो के दुआएं करता है, ताकि क्या हो हम रास्तबाज ठहरे, हम रास्तबाज ठहरे जो दुआ कर रहे हैं। और उस ताकि हमको क्या है वो जलाल जो है बख्शा जाए, जो खुदावंद का जलाल है वो हमारी जिंदगियों से नजर आए। तो इसलिए ये दर्द जो है दर्द ले लेके अपने लिए दुआ करें और दूसरों के लिए भी जो किसी भी तरह किसी मुश्किल में, यही हम कर रहे हैं ना, है ना। जैसे कह लें ग्रुप में मैं करती हूँ या और भी जो दुआएं करते हैं, हम क्या करें जो मुश्किल में है या परेशानी में है, बीमार हैं, उनके लिए दर्द लेके दुआ करनी है वो और खुदावंद की मर्जी के मुताबिक दुआ करनी है। एक और हवाला हम पढ़ते हैं गलतियों 4 बाब उसकी 19 आयत। जी माया, अंजना और वफा, गलतियों मेरी आवाज आ 4 रही बाब है? हाँ 19 जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जन्ने के से दर्द लगे हैं, जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। जी चाहता है कि अब तुम्हारे पास मौजूद होकर और तरह से बोलूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरफ से शुबा है। आमीन। हाँ ठीक है, लेकिन इससे हमें समझ लगी। जी अंजना। वर्ष बाजी 19 आयत, गलतियों 4 बाब 19 आयत। हे ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਸੂਰਤ ਨਾ ਫੜ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੇਰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ हाँ जी,
ये पालूस रसूल कह रहा है, खुदा उनका खादम कह रहा है कि वो क्या कर रहा है, दर्द ले लेके उनके, माया पढ़ोगे, माया है हमारे साथ, ओके चलिए। हाँ दी, हाँ 4 का 19 गलतियां। हाँ जी, हाँ 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 हाँ। हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। इच्छा तो ये होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ये प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे संदेह है। आमीन। आमीन। हाँ जी, क्या उसको लगे हुए हैं, दर्द लगे हुए हैं, जनने के से दर्द लगे हुए हैं। यानी जब हम दूसरों के लिए रो रो के दुआएं करते हैं, दर्द रखते हैं कि खुदावंद, कि वो खुदावंद यीशु मसीह की मानिंद बने, है ना, या हम अपने लिए दुआएं करते हैं तो वो क्या हमें लगे हुए हैं, जनने के से दर्द लगे हैं। जैसे औरत जो है क्या कहते हैं, जब उसको दर्दें शुरू हो जाती हैं, है ना, तो इसी तरह हमें भी, यानी जो कलीसिया है, जो चर्च है या दुल्हन जो है, वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, जैसे पौलुस रसूल अपनी कलीसिया के लिए, शागिर्दों के लिए इस तरह दुआएं जो था वो करता था कि किसी तरह ये जो खुदा ने मुझे रूहें दी हैं, ये यस्सु की सूरत पकड़ती जाए, खुदा यीशु मसीह की मानद बनती जाए, ये कलीसिया जो है या ये चर्च जो है या ये शागिर्द जो है ना। तो इसलिए यही दर्द मुझे और आपको भी लगने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु की मानद बने। तो अपने, ना सिर्फ अपने लिए, जैसे कुछ लोगों को बोझ है कि जी पानी का बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, ताकि क्या है, ये स्टेप है। कुछ लोगों का बोझ है कि वो पाखरू का बपतिस्मा लें, कुछ लोगों का बोझ है कि वो दर्द ले लेके दुआएं करते हैं कि खुदावन जो है इनकी ज़िंदगी में गहरे काम करे, अगर कमज़ोर हो गए हैं, गिर गए हैं, है ना? या बीमार हैं, तो ये दर्द ले लेके दुआएँ करते हैं। तो ये क्या है, दर्द लगे हुए हैं। तो ये एक मैं कहूँगी एक दुआ का एक पैटर्न है, या एक चर्च में, एक कलीसिया में, या एक जैसे हमारा ग्रुप है, ये दुआएँ जो हैं, ये जो दर्द लेके हम दूसरों के लिए करते हैं, ये एक लाज़मी जुज़ है। इसके बगैर कोई कलीसिया, कोई चर्च या कोई इंसान जो है जो मसीह में आ जाता है, मसीही जो है, वो यीशु की मानद नहीं बन रहा या नहीं बन सकता, है ना? कामिल जो है या खुदावंद की पूरी मर्ज़ी को पूरा नहीं कर सकता। ये सब हम सब में होना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की मानद बने। एक और हवाला पढ़ते हैं, कुलसियों पहला बाब उसकी 24 आयत। कुलसियों इसी के बाद है मेरा ख्याल गलतियों के बाद। कुलसियों पहला बाब उसकी 24 आयत पढ़ो। हाँ जी। ओके। अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूँ जो तुम्हारी खातिर उठाता हूँ, और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया की खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूँ। आमीन। आमीन। बस ਹੁਣ 24 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਵਿਪਤਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਅਰਥਾਤ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੌਜੂਬ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂ। ਆਮੀਨ। आमीन। जी माया पढ़ेंगे। कुलसियों 1 का 26 ना दी 24 हाँ जी 24 ओके। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ।
جس کا میں परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। आमीन। आमीन। ये पूरा ही वैसे चैप्टर जो है तकरीबन ये पालूस रसूल ने यानी अपने वो बताया है कि किस तरह लेकिन हमारे पास टाइम नहीं इतना होता कि हम पूरे ही पढ़ें, लेकिन उसमें ये खास मैं कहूँगी कि वो हमें बता रहा है कि वो किसकी खातिर मुसीबतें जो है, दुख जो है वो सह रहा है, कलीसिया की खातिर, है ना? ताकि वो क्या बने, ये कलीसिया जो है मसीह की मानद बनती जाए और जो पूरी तालीम है जो खुदावंद की है, खुदावंद यीशु मसीह की, या उसके जो भेद हैं वो जो ज़मानों और पुश्तों से पोशीदा थे, वो जो है वो कलीसिया तक, वो लोगों तक खुदावंद यीशु मसीह के जो लोग हैं उन तक वो पहुँचाए। यही हमने उसमें अमाल की उसमें उस दिन पढ़ रहे थे कि वो रात-रात भर जाग के जो कुछ भी उसके पास था, जो तालीम थी कह लें या खुदावंद पाक रूह जो उसको सिखाता था, उसका पूरा ये होता था कि वो उस कलीसिया को बताए। और एक जगह मेरा ख़्याल है हम देखते हैं कि वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ ताकि क्या करूँ, कोई जो नेमतें हैं वो तुम्हें मिले खुदावंद की तरफ से, है ना? यानी इतना ज़्यादा उनके लिए जो चर्च है, जो कलीसिया है, मसीही लोग जो थे उनके लिए वो बोझ रखता था, वो दर्द जो थे उसको लगे। और एक और जगह है, हवाले काफ़ी हैं लेकिन हम अ, आपको मेरा ख़्याल समझ लग गई है, मैं यही एक कह कराना चाहती थी कि ये जो खुदा के खादम हैं या हम खुद जब किसी के लिए दुआ करते हैं या अपने लिए, तो दर्द लेके दुआ करनी है। ये दर्दें जो हैं ये लगी होनी चाहिए। और अगर पुराने अहदनामे में भी हम देखें हिस्कियल को और दानियल को, जैसे दानियल ने जब महल 3 हफ्ते वो रोज़े रखे थे और जहाँ पे लिखा है कि वो इतना कमज़ोर सा हो गया था मेरा ख्याल दानियल 8 बार उसकी 27 आयत में ये लिखा हुआ है ना, कि वो गिर गया और क्योंकि उसने रोज़े रखे थे और जो खुदावंद का था फ़रिश्ता उसके लिए जवाब लेके आए, तो वो किसके लिए रोज़े रख रहा था? वो इस्राएली कौम के लिए दुआ में ठहरा हुआ था, रोज़े में ठहरा हुआ था, है ना? और वो दर्द ले लेके उनके लिए दुआएँ कर रहा था कि इतना एक कह लें कमज़ोर हो गया, ये इतना वीक हो गया, है ना? और दुआएँ किसके लिए कर रहा था? इस्राएली कौम के लिए कर रहा था। और फिर मेरा ख़्याल है हिस्किय्याल ने भी हम देखते हैं कि इस तरह किया कि अपनी कौम के लिए और भी बहुत हमारे खुदावंद के जो मुक़द्दस लोग हैं, पुराने अहदनामे में भी हम देखते हैं और नए अहदनामे में भी या फिर इब्राहिम के बारे में हम देखते हैं ना, तो ये क्या कर रहे थे अपनी कौम के लिए दर्द लेके खुदावंद की हुज़ूरी में कह लें दुआएँ जो थे वो कर रहे थे कि कहीं ये पीछे ना रह जाएँ, कहीं ये अ, जो खुदावंद की कामिल मर्ज़ी है उसको पूरा करने से कहीं पीछे न रह जाएँ और वो दर्द ले लेके दुआएँ करते थे। तो इसलिए ये दर्द आज मुझे और आपको लगे होने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि उन अम, पहले फलों की तरह पहले अब उस पलौठे की तरह इस ये जो बच्चा पैदा हुआ है अम, जो कि क्या है तख्त तक पहुँचा दिया गया। 5वीं आयत में तो अगर हम चाहते हैं कि इस तरह तैयार हों, तो ये कलीसिया जो है, ये जो औरत है, ये इसको दर्द जो है, ये कलीसिया जो है, इसको इस तरह के दर्द जो है, वो लगे रहने चाहिए। वो कभी भी जैसे कह लें कि एक होता है ना, जब हम अपने आप को फ़ील करना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं तो अब तैयार हो गया हूँ, तैयार हो गई हूँ। ये एक जो हमारे अंदर एक सोच आ जाती है कि मैं तो अब ठीक हो गई हूँ, मेरे अंदर वो कोई नहीं है। तो हमने मेरा ये जब चर्चेस के नाम खत लिखे जा रहे थे तो उसमें पढ़ा था, तो खुदावंद ने कहा कि तू अपने आप को समझता है कि शायद मैं अब ठीक हो गया हूँ, तो तुझे नहीं पता कि तू नंगा है और पता नहीं इस तरह कुछ वो वर्ड्स लिखी हुई है ना? तो इसलिए हमें नहीं पता होता है कि अभी हमारे अंदर कितनी अ, गलतियाँ हैं, कितने गुनाह हैं, कितना हम खुदावंद को
अपने कामों से या सोचों से या किसी भी तरह से दुख दे रहे हैं, नाराज कर रहे हैं, और हम ऐसी दुआएं नहीं करते, हमारे अंदर एक वो ठंडापन जो है वो आ जाता है। इसलिए ये जो है एक सोच जो कह लें वो कभी नहीं आनी चाहिए। हमें हर वक्त जो है दर्द जो है वो लगे रहने चाहिए, तब ही हम एक फतहमंद जो जिंदगी है गुजार सकते हैं। और तब ही हम अपने आप को पाक और साफ जो है कर सकते हैं या बना सकते हैं, या अ, कह लें कि उस तरह से तैयार हो सकते हैं कि अभी ये भी रहता है, अभी ये भी रहता है, अभी ये भी मैं इस तरह भी अभी तैयार नहीं हुई। खुदा उनका कलाम जो है मुझे ये भी सिखा रहा है कि अभी मेरे अंदर ये दाग, ये धब्बे जो हैं मेरे ऊपर लगे हुए हैं। तो ये दर्द जो है कलीसिया को लगे रहने चाहिए। तो इसलिए ये जो हमें नज़र आ रही है कि वो दर्द में है, वो तकलीफ में है, वो दर्द-ए-ज़ह में पड़ी हुई है। वो बच्चा जनने की जैसे एक दर्द होती है, उसमें पड़ी हुई है। इस तकलीफ में हमें सबको होना चाहिए। अगर नहीं है, तो आज से ही शुरू कर लें। अपने लिए कुछ भी गलती हो गई है, कुछ भी हमसे हो गया है, हम दूसरों को क्या लें इल्ज़ाम देने की बजाय कि मेरी जो जो मुश्किल है उसकी वजह से आई है, मेरे बंदे ने ऐसे कर दिया, मेरे ससुराल वालों ने ऐसे कर दिया, मेरे रिश्तेदारों ने ऐसे मेरे ऊपर कोई शायद जादू टूना कर दिया। मैंने आपको कितनी दफ़ा बताती आई हूँ कि हमारे ऊपर कोई रिश्तेदार, कोई हमारा बंदा, कोई वो कुछ नहीं कर रहा। हमारे खिलाफ जो है यही अ, मैं कल या परसों शायद हम वो सीखेंगे, वो जो ड्रैगन है, वो जो अस्तहा है, वो जो पुराना साँप है, वो कह लें इसमें नहीं है, ठीक है। तो वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, वो हमारा दुश्मन है। उसकी जो बदरूहें हैं, वो हमारे रिश्तेदारों के अंदर से होके या हमारे हस्बैंड के अंदर से, बीवी के अंदर से होके, बच्चों के अंदर से होके, ये दुश्मन की फ़ौजें जो हैं वो हमारे खिलाफ काम कर रही हैं। वो हमारा जो हस्बैंड है वो हमारा दुश्मन नहीं है। हमारी जो बीवी है वो हमारे कह लें वो हमारे गिरने का सबब नहीं है। हमारे गिरने का या हमारे कमज़ोर होने का सबब जो है, यही पुराना साँप है, जो नहीं चाहता कि ये जो तख़्त है, जो वो जगह है, वो जो कि कह लें उसकी थी या वो जाना चाहता था वहाँ पे, तो वो नहीं चाहता कि हम उस जगह पे जाएँ। इसलिए वो हमें टाँगे हमारी पीछे को खींचता है, हमें गिराने की, हमें कमज़ोर करने की कोशिश करता है ना? तो इसलिए हमारी जंग जो इफ्सियों के ख़त में हम पढ़ते हैं कि गोश्त और खून से नहीं है, हमारी जंग उन रूहानी फ़ौजों के साथ है, जो ये इसकी फ़ौजें हैं, जो शैतान की फ़ौजें हैं। तो इसलिए हम जो हैं जब इस तकलीफ़ में हों या कुछ भी परेशानी आ गई, बीमारी आ गई है, तो हम इससे मुकाबला करें, ताकि हम इस पे फ़तह पाके जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कह लें शैतान के सर को कुचला, तो हम भी उसके सारे ज़ोर को, उसकी कुदरत को पाँव तले कुचल के उस तख़्त तक पहुँच सके। तब भी हम उसके खुदा यीशु मसीह की दुल्हन की मानद तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए ये दर्द लेके अपने कहीं पे भी कहीं कमज़ोर हो गया है कि क्यों ये मेरे ऊपर हमला हो गया? क्यों इस तरफ से मैंने सुराख जो है या दरवाज़ा जो है वो खोल दिया? शायद मैंने कुछ बुरा सोचा था, बुरा बोला था, इसकी वज़ह से हो गया। बजाए ये कि हम अ, या हमने शुक्रगुज़ारी नहीं की। एक हमने वो जो जब कुर्बानियों के बारे में सीखा था, तो उसमें ये भी सीखा था कि कहीं किसी काम में ये होता है कि कई दफ़ा हम शुक्रगुज़ारी ही नहीं करते खुदावंद की, तब भी अ, हम कह लें खुदावंद से पीछे हट जाते हैं या दूर चले जाते हैं। तो ये शुक्रगुज़ारी जो है अ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है वैसे हम ठीक चल रहे हों, लेकिन हमने खुदावंद का शुक्र ना किया हो। हम सोचते हों कि शायद ये मेरे ही ज़ोर से, मेरे ही किसी वजह से ये काम जो है मेरा हो गया है। तो तब भी इसका मतलब है हमें माफ़ी माँगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए और दर्द लेके
दुआ जो है करनी चाहिए कि खुदावंद मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता, मुझे वो पहले उसके क्या लें सज़ोर दे, पहले से ताकत दे, पहले से वो जो मेरे अंदर पाखरू की आग है वो लग जाए, है ना? तो दर्द लेके अपने लिए भी दुआ करें और हमारे आस-पास जो हैं यानी जैसे कह लें बहन-भाई हैं, बीवी है या शौहर है हमारा या बच्चे हैं हमारे, बजाय कि उनको पहले शर्मिंदा करें या उन पे इल्ज़ाम लगाएँ कि तेरी वज़ह से मैं आज तक कामयाब नहीं हुई, तेरी वज़ह से आज तक मैं खुदावंद में बढ़ नहीं सकी, तो तू मेरी ज़िंदगी में रुकावटें पैदा कर रहा है ना या कर रही है। तो ये जो एक रवैया है हमारा दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने का, इसको छोड़ें और दर्द लेके अपने लिए भी दुआ करें और दूसरों के लिए भी। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी ये फ़ज़ल दे, हम सब भी कहीं न कहीं कमज़ोर हैं या कहीं न कहीं हमारे अंदर कुछ गड़बड़ जो है वो खराबी जो है वो चल रही है। तो खुदावंद हम सबको तैयार करे यीशु की मानद और हम अपने आप को पेश करें इन क्या लें जन्ने के से दर्द जो हैं वो मुझे और आपको लग जाएँ, ताकि हम आम मसीहियों की तरह नहीं, क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे कि कलीसिया यहीं पे रह जाएगी। लेकिन वो जो दर्द लेके दुआएँ करते हैं, वो जो बच्चा है जो दुल्हन है, जो पहला फल है, वो आसमान तक या तख्त तक पहुँचा दिया गया। तो गॉड ब्लेस यू, बैक टू सनिया। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू भाभी जी। खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे, खुदावंद आपको काबू का जोर दे। बहुत खूबसूरत कलाम, वाकई खुदावंद का कलाम किसी भी रूप में आए वो असर दिखाता है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद पाक रूह ने आपके थ्रू हमसे बात की। बेशक खुदावंद हम सबको अपने लिए अपना जोर बख्शे और खुदा यीशु मसीह की मानद हमें तैयार करता जाए। खुदावंद आपको और ज्यादा हिकमत से भरे और आप खुदावंद में इसी तरह से आगे बढ़ती जाएं खुदावंद, और हमारे लिए बाइस बरकत साबित होती रहें। प्रेज लॉर्ड। अब मैं सिस्टर वफा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लास्ट प्रेयर में हमारी रहनुमाई करें। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज बता दें। वैसे तो खुदावंद हमारी सब दुआओं को सुनते ही हैं। ओके, मैं शुरू करती हूँ। कुदूस 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 आसमान और जमीन को बनाने वाले खुदावंद, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है खुदा। तू अब तक यकसा खुदा है खुदा। तू ऐसा हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है खुदा। आपके हुजूर ऐसा जब हम हाजिर हुए हैं खुदा, अपने दिलो जान से है खुदा, सब अपने हदिया नजराने लेकर आए। सॉरी, 1 मिनट में आ रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, सोरे शिक्रिया कात्रिया रेबे संदरा संदरा शेरी बेरे 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 बेरे। हालेलुया, शिक्रिया कात्रिया रबा 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 बेरे शेरे रेबे सिंदरिया ओरे बेरे 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 बे शिरिया कात्रिया रबा रबा रबा। हालेलुया, 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 शिरी बेरे 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 सिक्रिया कात्रिया ओ रबा 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 शेरे रे 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 बेरे संदरा शिक्रिया को। हालेलुया, 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 सियारा हालेलुया। सियारा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐ बाप, आपका शुक्र करते हैं खुदाऊं कि आपने मौका दिया कि आपकी हुजूरी में आए हैं खुदाऊं। ऐसे जितनी भी जाने ऐसा आपके हुजूर हाजिर हुई है खुदाऊं, उन्होंने आपकी आवाज को सुना और खुदाऊं हम सब ने ऐसा आपकी आवाज पे ऐसा आमीन कहा है खुदाऊं, क्योंकि रूह और दुल्हन कहती है कि आ है खुदाऊं। हम आपके कलाम पे ऐसा आमीन कहते हैं और ऐसा जो भी गंदगी ऐसा हमारे अंदर पाई जाती है, ऐसा हमारे सोचों के जरिए, ऐसा हमारे किरदार के जरिए, ऐसा आपके पाक लहू से ऐसा उस तमाम गंदगी को धोते हैं खुदा, क्योंकि हम नहीं जानते ऐसा कि हम अपने अल्फाज से, अपने रवैयों से, ऐसा अपनी गलत सोचों से ऐसा कितनी बार ऐसा गुनाह करते हैं खुदा। ऐसा हम अपने ऊपर ऐसा एक भी झुरी, एक भी धब्बा खुदा नहीं रखना चाहते ऐसा, क्योंकि हम ऐसा आपकी जिंदा कलीसिया ऐसा आसमान पर जाना चाहती है, ऐसा आपके साथ रहना चाहती है ऐसा, जहाँ पे आप ऐसा जो जगह आपने हमारे लिए तैयार किया है खुदा। ऐसा इब्लीस हमारी इस राह में ऐसा रुकावट ना बने ऐसा, क्योंकि हम आपकी दुल्हन है खुदा।
آپ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنے والے ہیں خداوند، اور ایک دم ہمیشہ ہمیں اس ابلیس شریر سے ایک دم بچا کے رکھے ہیں خداوند. اپنا شفقت بڑا ہاتھ ایک دم ہمارے اوپر ہمیشہ اسی طرح قائم رکھنا ہے خداوند. ہم نہ دہنے مڑے نہ بائیں مڑے ایک دم، بلکہ ہم اپنے یسوع کو تکتے ہوئے ایک دم آگے بڑھتے چلے جائیں خداوند. ایک دم جس طرح آپ نے پترس کو کہا کہ چل پانی پہ چل ایک دم، اور پترس ایک دم اس کشتی میں نہیں بیٹھا ایک دم، لیکن اس نے ایک دم آپ کے کلام پر عمل کیا رہتا، وہ آپ کی طرف بڑھا ہے خدا، اور آپ نے اس کو تھام لیا ہے خدا. ایک دم ہمیں بھی ایک دم اسی طرح ہمیشہ تھامے رہے ہیں خدا، تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ ایک دم پانیوں پہ چلے ہیں خدا. ہم ان تمام ابلیسی قوتوں کو اے خدا ہم اپنے پاؤں تلے ایک دم رونتے چلے ہیں خدا. اور ایک دم ابلیس ہر بار ایک دم شکست کھانی پڑی ہے خدا. ہمارا ایمان اتنا بڑھا دیں کہ ایک دم ہم بھی طوفانوں کا مقابلہ ایک دم بڑی دلیری سے کریں خدا. ہم بھی پطرس پالوس سلاس کی طرح خدا آپ کی منادی ایک دم کرنے والے ایک دم بنے ہیں خدا. ہم بھی آپ کے نام کی خوشخبری کو پھیلانے والے بنے ہیں خدا. ایک دم ہم ایک دم بڑھتے چلے جائیں، آپ کا یسوع نام لے کے بڑھتے چلے جائیں خدا، اور اپنی ایک دم اس مقدس جگہ کو ایک دم ہم حاصل کریں. ایک دم ہماری زندگی کے آخری سانس تک ایک دم ہمارا منہ سے ایک دم آپ ہی کا نام نکلتا رہے خدا. ہم آپ ہی کے لیے جیے خدا، ہم آپ ہی کے لیے مرے ہیں خدا. ہمارے اندر سے ہر طرح کا ڈر و خوف نکال دیں خدا. ہم تمام روحوں کو ایک دم جو کہ ایک دم یہاں بیٹھی ہیں خدا، ہمارے پورے گھرانوں کو ایک دم آپ کے یسوع نام میں ایک دم چھپا دیتے ہیں خدا، آپ کے یسوع کے لہو میں چھپا دیتے ہیں خدا، تاکہ ہم میں سے کوئی بھی ایک دم آپ کے خلاف گناہ نہ کرنے پائے خدا. ایک دم آپ سے منت کرتے ہیں خدا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ایک دم جو بھی ایک دم اس گروپ میں خدمات کرتے ہیں خدا، اور جو ایک دم ابھی نہیں کر سکتے ایک دم، ان تمام بچوں کو بھی ایک دم آپ کے لہو میں محفوظ کرتے ہیں خدا. ابلیس ایک دم ان کی طرف بھی ایک دم نہ بڑھنے پائے خدا، ان کو بھی ایک دم آپ کے لیے ایک دم مسا کرتے ہیں خداؤں کے ایک دم، وہ بھی ایک دم آپ کے لیے ایک دم یوں ہی ایک دم اپنی جو ایک دم ہمارے ساتھ عبادت میں بیٹھتے ہیں خداؤں، اسی طرح ایک دم آپ کو وقت دیتے رہے ایک دم، وفاداری کے ساتھ ایک دم ہم آپ کے ساتھ وقت کو گزارے ہیں خداؤں. کیونکہ ایک دم یہ وفاداری ایک دم ہمیں ایک دم ہمارے ایک دم اس منزل تک پہنچائے گی خداؤں. کیونکہ ایک دم آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا آپ وفادار خدا ہیں خدا. ہم آپ کی اسی وفاداری کی روح کو بھی اپنے اوپر مانگتے ہیں خدا، تاکہ ہم ہمیشہ ایک دم آپ کو نمبر 1 پہ رکھیں خدا، آپ کو ہم پہلے قدم پہ رکھیں خدا، کہ ایک دم ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ایک دم ہمارا آپ ہی سے شروع ہوا ہے، آپ ہی پہ ختم ہوا ہے خدا. ہر طرح کی ایک دم جس طرح کے ایک دم آج کلام میں کہا گیا کہ ایک دم جو توڑا ہمیں ملا ایک دم ہم صرف اس کو آپ کے لیے وقف کر دیں ایک دم. ایسا ہی ہوا ہے خدا. جتنے ہمارے پرستار ہیں خدا، جتنے ایک دم ہم آپ کے آگے ہدیے نذرانے گزران تھے خدا، ہماری آوازیں ایک دم ہمارے گلے صرف ایک دم آپ کے لیے کھلے ایک دم، آپ کی حمد و ثنا کے لیے ایک دم کھلے خدا. اور ایک دم ہم ہمیشہ ایک دم ہمارے قدم ہمارے ہاتھ جو بڑھے ایک دم آپ کے کلام کی طرف، اور ایک دم آپ کے ایک دم جو احکامات ہیں اور ایک دم نیک کام ہے ایک دم ان کی طرف بڑھے ایک دم. بدی کی طرف ہم کبھی بھی نہ بڑھنے پائے خدا. یسوع کے نام سے ہمارے ایمان کو ایک دم بڑھاتے جانا ایک دم، تاکہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ اپنے ایمان کے لیول میں بڑھتے چلے جائیں خدا. اور ایک دم ہر طرح کی ایک دم تسلی اور سکون اور اطمینان پائے ایک دم. جس طرح پلوس سلاس ایک دم پطرس ایک دم وہ جب بھی قید میں ہوتے تھے ایک دم وہ بہت سکون میں ہوتے تھے ایک دم، اسی طرح کا سکون اور اطمینان ایک دم اپنی زندگیوں میں مانگتے ہیں. جبکہ ایک دم ابلیس ہمیں طرح طرح سے آزماتا ہے خدا، ہم بھی ایک دم خوش ہوں ایک دم، کیونکہ ایک دم ہم آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہارا غم ہی تمہاری خوشی بن جائے گا. ہم اپنے غم میں ایک دم خوشی محسوس کریں ایک دم، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم خوش ہونا غمگین نہ ہونا، کیونکہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے خدا. ہم اپنے اس اجر کو دیکھتے ہوئے ہیں ایک دم، ہمیں دنیا کی تکلیفوں کا ایک دم ذرا بھی ایک دم محسوس نہ کریں ایک دم. ہمارے ایمان کو اسی طرح بڑھاتے رہنا ہے خدا. آپ کی خاتمہ کے لیے دعا کرتے ہیں خدا، اس کو ایک دم صحت و تندرستی عطا فرمانا ایک دم، اسی طرح اپنے پیار محبت میں بڑھاتے رہنا، تاکہ ایک دم وہ بہت ساری روحوں کو آپ کے لیے ایک دم جیتے ہیں خدا. جس طرح ایک دم وہ پورا خاندان مل کے ایک دم آپ کے لیے کام کر رہا ہے ایک دم، اسی طرح آپ کا جلال ایک دم ان میں نظر آتا رہے، اور ایک دم وہ اسی طرح بڑھتے رہے ایک دم. ان کے بچوں پہ برکت ایک دم، ان کے بچوں کے لیے ایک دم برکت چاہتے ہیں ایک دم، جبکہ وہ بھی اس منسٹری میں خدا ایک دم ان کو بھی بھرپور طریقے سے استعمال کریں خدا. ان کے لیے جو بھی دروازے ہے خدا آپ نے کھولے ایک دم، ان کو ایک دم اور وسیع کریں، تاکہ ایک دم وہ پورے دل سے پوری لگن کے ساتھ ایک دم آپ کے کلام کو ایک دم آپ کے جلال کو ایک دم دوسروں پر ظاہر کر سکیں ایک دم. جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں ایک دم ہم سب کو اپنے روح سے بھر دیں ایک دم، کیونکہ آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ نہ زور سے یہ نہ طاقت سے بلکہ یہ میرے روح سے ہوگا ہے خدا. ہم سب کو ایک دم روح سے بھر دیں ایک دم، ہم سب کے اوپر اپنا مسا ایک دم انڈیل دیں ایک دم، اپنا تیل انڈیل دیں ایک دم، تاکہ ہم ایک دم
इसी तरह रूह से भरे हुए है खुदा, एक दूसरे से जुदा हो खुदा, जिस जिससे हम खुदा बात करें, कलाम करें खुदा, वो आपकी अन मर्जी के मुताबिक हो खुदा, ताकि खुदा जो भी खुदा हम फल लाए खुदा, वो 100 गुना फल लाए खुदा, आपके हुजूर खुदा वो फल मकबूल हो खुदा, और हम उस ईमानदार नौकर की तरह खुदा आपसे खुदा शाबाश ले सके खुदा, जिस तरह आपने कहा था कि ऐ ईमानदार और नेक नौकर शाबाश खुदा, हम उसी तरह आपके लिए खिदमत करना चाहते हैं, हम उसी तरह आपके खादम बनना चाहते हैं खुदा। एकदम हम में से अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी को दूर करें, एकदम कोई दुख में है उसके दुख को खुशी में तब्दील करें खुदा, आपके यीशु आमीन नाम से एकदम ये करते हैं, क्योंकि खुदा यीशु नाम ही हमें बख्शा गया है खुदा, जिसके वसीला से हम सब कुछ पा सकते हैं खुदा, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है ना आसमान पर किसी को ऐसा नाम बख्शा गया, ना जमीन पे बख्शा गया, और जो कुछ तुम मेरे बेटे के नाम से मांगोगे वो मैं तुमको जरूर दूंगा खुदा। खुदा और खुदा फ्रेडी मॉम के लिए दुआ करते हैं खुदा, जबकि वो आपका बच्चा तकलीफ में है खुदा, हर तरह की तकलीफ उसकी दूर करें खुदा। खुदा और खुदा जितने भी ग्रुप मेंबर्स है खुदा आपके हुजूर खुदा, जो रेगुलर आते थे खुदा, किसी रुकावट की वजह से खुदा जो इब्लीस ने उनके आगे खुदा अटकाई है खुदा, वो नहीं आ पा रहे हैं खुदा, उनकी तमाम रुकावटों को दूर करें है खुदा, ताकि वो भी खुदा जब इस ग्रुप का हिस्सा है खुदा, आपके इस खुदा कलाम को खुदा, आपकी इस रोटी को खुदा रोज लेने वाले बने हैं खुदा, ताकि वो भी खुदा आपके इस खुदा बादशाहत से, आपके खुदा इस मिरास से खुदा वो भी हिस्सा ले सके खुदा, खुदा हम सब की मिरास खुदा हमें मिले है खुदा, कोई भी खुदा से पीछे ना हटने पाए खुदा, हमारे यस दिल खुदा हमेशा आपकी तरफ लगे रहे खुदा, उस पाक दामन कवारी की तरह खुदा, जो हर वक्त खुदा अपने महबूब की आवाज को सुनती है खुदा, उसको महसूस करती है खुदा, खुदा आपके आगे मिन्नत करते हैं, इस छोटी सी दुआ को सुने और कबूल करें, ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आमीन। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, आमीन उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा ने आज आमीन गॉड ब्लेस यू टू। आमीन जो एक बोझ है, जो आंसुओं से दुआ करते हैं, जैसे कलाम में एक जगह लिखा है कि जो आंसुओं से बोते हैं खुशी से काटेंगे। तो आज हम अगर दुखों में, तकलीफों में क्या कहते हैं, दुख में से गुजर रहे हैं, लेकिन हम खुदावंत के साथ जब उसके साथ होंगे तो खुशी मनाएंगे। और आज ये जो दुख की घड़ी है, ये जो तकलीफ की घड़ी है, खुदावंत ने इसमें से गुजरने के लिए आज मैंने देखा कि एक ऑयल जो है हमारे ऊपर उंडेला है कि खुदावंत के मसा से, खुदावंत के जोर से, उसकी ताकत से हम ये सब कुछ कर सकते हैं। और खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि एक और मैंने विजन देखा, जैसे कि 2 हाथ हैं आसमान पे, मैंने ऐसे देखा है कि वो रोशनी की माने, जैसे उसने हमें आके तेज रोशनी की तरह क्या ले, उन हाथों ने हमें कवर जो है वो कर लिया। तो इसलिए खुदा उनका शुक्र हो कि खुदाउन ने हमें घेरा हुआ है, खुदाउन ने हमें अपने हाथों में गले छुपाया हुआ है, उठाया हुआ है। हमें डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और खुदावंद ने वो एक कुदरत, एक ताकत जो है वो हमें दी हुई है, जैसे कि खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि सांप और बिच्छू को कुचलो और उसकी सारी कुदरत पे गलबा पाओ। हालेलुया। तो इसलिए खुदावंद ने वो पहले से ही हमें दिया हुआ है, लेकिन आज फिर से खुदावंद ने हमें वो ज़ोर, वो नया ताकत जो है, वो मसा हमारे ऊपर डाला, इसलिए खुदा उनका शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू। अगर और किसी ने कुछ देखा है, कुछ खुदा ने आपको टच किया है, तो आप शेयर कर सकते हैं। या कलाम के वसीला से कुछ तसल्ली मिली है तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके जी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। फिर गुड नाइट जी।